So, hello all, this is our second video on the topic calendar. In this video, we will do some questions, right, of this textbook. So, calendar, this in the previous video we have already discussed. These are days, some codes, some digits are given to some day, to all these days. Sunday for 0, Monday to Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4, 5 and 6. Similarly, month Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. These are grouped into 3. So we have made group of 3, right? So that it is easy to remember. Now first write this one 033 and then the last one 035, 033, 035. Then the middle one 614 and 625. So this is the easiest way how to remember it. Year 1600 to 1699 6, 1700 to 1799 4, then 2, then 0 6. This is also in descending order 642. How to remember it? 642 06. Simply. Now let's come to this question. This is a question 4th of exercise 3B applied maths. Question 4th. We will talk about question number 1, 2 and 3 also after this. So question number 4th June 2002. What was the day on this date, right? Is then कौन सा day था? So this is very easy to determine. Just simply write the last 2 digits. This is the first step. The last 2 digits of the year 02. Write it here 02. Then divided by 4. So 02 when divided by 4 gives quotient 0, right? Because we cannot divide it, so quotient is 0 and remainder is 2 itself, right? So quotient, write the quotient here. This is quotient, right? Now write the date. Date is 4th, so 04. Write the number of month. Now month is June. Now what value we have given to June? June we have given 4, so write down 4 here, right? Write the number of year. Year is 2002. So 2002 what we have given? 2002 lies in this duration, right? So 6. So value given to 2000 to 2099 years is 6. So write down 6. Add the following values. It is 16. Now 16 divided by 7. So remainder will be 2. So 2 value is Tuesday. So the day will be Tuesday. Simple. So 2 values, remainder we have to take either. Here remainder we have to take 2 values Tuesday, so Tuesday is the answer. Next question. What was the day of the week on 28th May 2006? 28th May 2006. So all of you pause the video and try to do it yourself. 2006. So again last 2 digits 06 divided by 4. When divided by 4 quotient will be 1. 6 divided by 4, 1 time 4. Next write the date 28. Write the number of month. Now May it is, right? So May is 1. So write 1. Write the number of year 2006, so it will be 6. So 6. Add the following 617, 28 and 7, 35, 36 and 6, 42. Now 42 divided by 7. Remainder is 7, 6, 42, so 0. 0 remainder means 0 is the day Sunday. So Sunday is our answer, right? Let's just tally the answer. You can pause the video and note down. So the answer is Sunday. Next, very easy it is, right? Just remember the steps, remember the codes, you can easily do. Next, what was the day on 17th June 1998? 17th June 1998. You can take any date from your side and try to solve it, try to get the day.
So 17 June, last 2 digits of the year 98, divided by 4, 4 2 times 8, 4 4 times 16. Write the date 17. Write the number of month, June it is, so June is 4 again. Write the number of year 1998, so 1998 will lie in this segment, so 0. Add the following. Now 8, 4 4 8 8 8 16, 16 and 7, 16 and 7 23, 3 and 2 9 10 11 12 13 14, divided by 7. So when it is divided by 7, the remainder will be 3. So 3 means Wednesday, so this implies Wednesday. So this is our answer. So very easy it is. Just simply pause the video and note down. Now try to understand the concept which I want to convey. It is very important and this is very helpful in competitive exams also. So definitely there are questions in competitive exams when you will fight for bank and SSC and government exams. So in reasoning portion there will be questions. This is a topic of reasoning also, logical reasoning. So try to understand. See, ordinary year have 52 weeks, right? Total 365 days. That means in 365 days it has 52 complete weeks and 1 day. So 1 day is called one odd day. We call it one odd day, right? Similarly, in a leap year there are total 366 days. So that means 52 weeks, complete weeks and 2 days, right? So that is we call 2 odd days, right? Every 4th century year is a leap year. How? If suppose 1900, so if year 1900 we have to see it is a leap year or not. So people will say it is divisible by 4, so it is a leap year. No, it is not a leap year. How? If any year is divisible by 400, if any century is divisible by 400, then only then we can say it is a leap year or the century year is a leap year. Since 1900 is not divisible by 400, पूरी तरह से नहीं हो रहा divide, so that means it is not a leap year. So this you have to understand carefully. Ordinary years की last 2 digits को हम 4 से divide कर दे तो हमको पता लग जाएगा कि leap year है या नहीं है. पर अगर हम बात करें किसी century की, so we have to divide it by 400 in order to see if it is a leap year or not, right? Next, so we can say every 4th century is a leap year. Next, in 100 years, so in total 100 years we have 24 leap years and 76 non-leap years. 24 leap years means in a leap year we have 2 odd days, so 24 multiplied by 2 plus 76 non-leap year. In non-leap year we have 1 odd day. 1 odd day means एक अलग से दिन है, पूरे वीक में इंक्लूडेड नहीं है. So that is 76 multiplied by 1. So total in 100 years we have 124 odd days, right? अब अगर हमको odd days 124 है तो 124 odd days मिलके भी तो वीक बना रहे हैं. तो एक वीक में 7 days होते हैं, तो 124 odd days divided by 7 अगर हमको number of weeks निकालने हैं तो कितना बच रहा है? इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं. 7 1 टाइम 7 5 4 7 7 टाइम 49, रिमाइंडर बच रहा है 5. तो दैट मीन्स 5 ऑड डेज बच रहे हैं. बाकी 17 कंप्लीट वीक्स बना लिए 124 ऑड डेज ने मिलके. तो 124 ऑड डेज ने मिलके 17 कंप्लीट वीक्स बना लिए और बचे हुए डेज कितने? 5. तो 5 ऑड डेज होते हैं किसमें? 100 ईयर्स के अंदर. टोटल 100 ईयर्स के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने ऑड डेज होते हैं? 5 ऑड डेज. 124 ऑड डेज नहीं निकलेंगे. हर 7 डेज की साइकिल एक कंप्लीट वीक बना लेगी. तो जैसे 7 डे हुए एक कंप्लीट वीक हो गया, रिमाइंडर जो बच रहा है वो ऑड डेज हो गए. नेक्स्ट, सिमिलरली 200 ईयर्स में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 ऑड डेज होने चाहिए, पर मैंने कहा था 7 डेज में एक पूरा वीक हो जाता है. तो 10 - 7 कितना हो गया? 3 ऑड डेज. तो 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं.
300 ईयर्स में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 ऑड डेज होते हैं, राइट। पर 15 ऑड डेज में 2 वीक कम हटा दिया हमने, 14 डेज। 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, रिमाइंडर 1, तो 1 ऑड डे। कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बच रहा है वो ऑड डे हो गया, क्योंकि 7 डेज मीन्स 1 वीक। 400 ईयर्स में 5 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 100 ईयर्स में 5 होते हैं, तो 400 में 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 400 मीन्स अ लीप ईयर सेंचुरी, राइट। 400 डिवाइडेड बाय 400 हो रहा है, तो दैट इज दिस विल हैव 1 लीप ईयर आल्सो। सो 1 लीप ईयर मीन्स 1 डे। सो 5 4 20, 20 प्लस 1 21। अब 21 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, रिमाइंडर बच रहा है 0, सो दैट मीन्स 0 ऑड डे। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3, विच कांट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। इनमें से कौन सा दिन सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता। अब 5 ऑड डेज मीन्स, ये ऑड डेज मतलब ये कोडिंग भी यूज कर सकते हैं। 5 ऑड डे मीन्स फ्राइडे, तो मतलब लास्ट डे क्या होगा इसका, फ्राइडे, सिंपल। इसका लास्ट डे क्या होगा 3 ऑड डेज का, 3 मीन्स वेडनेसडे, तो वेडनेसडे। 1 ऑड डे मीन्स मंडे, तो मंडे। 0 ऑड डे मीन्स संडे, संडे। तो मतलब हर 400 साल के अंदर यही साइकिल बार बार रोटेट होगी, हर 400 ईयर्स में यही साइकिल बार बार रोटेट। तो कौन से डेज नहीं हुए इस साइकिल का पार्ट, कौन सा लास्ट डे नहीं होगा किसी भी सेंचुरी का, तो कौन सा होगा, मंडे, संडे, मंडे। एक तो बच गया ट्यूसडे, दूसरा बच गया थर्सडे और सैटरडे। तो ये तीनों दिन कभी भी किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं होंगे। सो जस्ट नोट डाउन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, राइट। वेरी इजी, यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो। 5 ऑड डे मीन्स 5 की रैंकिंग देख लो, तो वहां से हमने ये पता लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, तो जब भी हमको नंबर ऑफ डेज पता हो और हमको कोई भी डे दी हुई डेट, मतलब डे पता हो, तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर डे पे कौन सा, पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, January 1st 2008 इज ट्यूसडे। January 1st 2008 ट्यूसडे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 वी आर डूइंग, which day of the week lies on 1st January 2009? So 1st January 2009. Now we know that from this January 1 to January 1, 2008 to 2009, 1 year is completed, right? Total 1 year is completed. But 2008 is a leap year also. So February will have 29 days, right? There is 29 days. Feb will have, so total this is a leap year, so number of days from 1st January 2009, from 1st Jan 2009 or 2008, this is a leap year, to 1st Jan 2009। अब एक लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366 डेज। अब 366 डेज लीप ईयर में हमने पता किया, तो इसमें कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे, 2 ऑड डेज। सो मतलब ट्यूसडे के बाद 2 ऑड डेज ऐड करने हैं, तो ट्यूसडे प्लस, क्योंकि ट्यूसडे तो ऑलरेडी है हमारे पास इस दिन, इसमें 2 ऑड डे और ऐड होंगे, तो ट्यूसडे के बाद ऑड डे और ऐड होंगे, तो वेडनेसडे और थर्सडे। तो ट्यूसडे प्लस 2 ऑड डेज मीन्स थर्सडे। सो द आंसर विल बी थर्सडे। वापस समझो, इस दिन ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे की कोड क्या है, 2 बोल सकते हैं, ट्यूसडे का कोड 2 है, तो इस दिन ट्यूसडे है, यहाँ पे हम ट्यूसडे को 2 भी लिख सकते हैं, प्लस 2 4, तो 4 ऑड डेज मतलब क्या है, थर्सडे।
ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस दिन ट्यूसडे है, नेक्स्ट ईयर सेम डे पे क्या होगा, तो टोटल गैप कितना डेज का आ रहा है, 366 डेज का। 366 डेज के अंदर ऑड डे कितने बन रहे हैं हमारे पास, 2 ऑड डे बन रहे हैं। ट्यूसडे की कोड क्या है 2, इसमें 2 ऑड डे और ऐड हो गए, 2 + 2 कितना हो गया 4। सो 4th किसके आ रहा है, थर्सडे का, तो थर्सडे आंसर। बहुत इजी। सिंपली जितने भी डेज बच रहे हैं रिमेनिंग बीच में उसको 7 से डिवाइड कर दो तो ऑड डेज पता लग जाएंगे। ऑड डेज अगर हमको पहले का डे दिया हुआ उस ऑड डे से उस वाले ऑड डे को ऐड कर दो, टोटल ऑड डेज पता लग गए, तो उसको उसकी कोडिंग देख लो। जैसे इसकी ट्यूसडे की हमको ऑड डे पता था, 2 ऑड डेज होते हैं, मतलब 2 इसकी कोडिंग है। सिमिलरली 2 हमारे पास बच रहा है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। 4th किसकी कोडिंग होती है, थर्सडे की, तो थर्सडे हमारा आंसर है। नेक्स्ट, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 days which day will be preserved? Second question, just pause the video and note down. Today is Monday, अगर आज मंडे है तो 61 डेज के बाद कौन सा डे आएगा, तो मंडे की कोड क्या है, which is the code of Monday? 1 Monday, 1 odd day. Monday means this one, right? Now after 61 days, so in 61 days, number of odd days, 61 डेज के अंदर कितने ऑड डेज होंगे वो कैसे पता लगाएंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि पूरे 7 डेज में एक वीक बन रहा है, तो 61 डेज में कितने वीक हो गए, number of odd days is 61 divided by 7, so remainder will be 61 divided by 7, 7 8 times 56, so remainder is 5, right? So 5, this implies 5 odd days। 61 को रफली आप डिवाइड कर लो, 61 divided by 7, 7 8 times 56, so that means 8 तो पूरे वीक हो गए, तो उसमें तो कोई ऑड डे बचा नहीं, बचा क्या 5, so 5 days means ऑड डेज। ये है हमारे पास ऑड डेज, तो 5 ऑड डेज आ गए हमारे पास। 1 ऑड डे मंडे की कोडिंग है, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 1 + 5 6। 6 किसकी कोडिंग है, सैटरडे की, दिस इंप्लाइज सैटरडे। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, मंडे के बाद से काउंट करो 5 दिन, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे आंसर। मंडे के बाद से 5 डेज काउंट कर लो, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे हमारा आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑन 8 December 2007 सैटरडे फॉल्स, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 8 December 2006? 2007 और 6 के वेरिएशन है। तो 7 में अब की बार हमको बाद वाले ईयर में पता है डे, पहले वाले ईयर का डे निकालना है, राइट? तो ये भी काफी इजी है, पहले हमने ऐड किया था, अब की बार हमको माइनस करना है बस। देखते हैं, 8 December 2007 सैटरडे फॉल्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th, 8 December 2007 Saturday, right? So we have to find out which day was on 8 December 2006. 8 December 2006. So number of days in between, इन बीच में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे। अब 2006 भले ही लीप ईयर हो, पर फरवरी अभी नहीं आ रहा, 8 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर 2007 तक, 2006 से लेके 2007 तक, तो दिसंबर की बात हो रही है, इसमें फैब इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए इसको लीप ईयर कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 365 डेज, 365 डेज, मतलब 1 ऑड डे। कितने ऑड डेज हो गए, एक, 365 डेज में। तो एक ऑड डे कम करना है हमको, मतलब कि 8 दिसंबर 2006 जो भी ऑड डेज दिन होगा, ऑड
डे, जो भी ऑड डेज दिन होगा वो प्लस, जस्ट 1 सेकेंड, जो भी ऑड डेज दिन होगा वो प्लस 1 इज इक्वल टू ये सैटरडे वाला ऑड डे, सैटरडे वाला ऑड डे क्या है 6, राइट, ये वाला ऑड डे हमने यहाँ पे यूज किया है 6, इसमें 8 दिसंबर को जो भी दिन था उसमें एक दिन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6, क्योंकि ये यहाँ से आया, ये वाला 1 यहाँ से हमने यूज किया है, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 दिसंबर 2006 को कितने ऑड डेज हो गए 6 - 1 विच इज 5, सो 5 किसका होता है फ्राइडे का, फ्राइडे आंसर। कितना इजी है, कुछ भी नहीं किया। अगर आप वैसे देखें तो एक ऑड डे आ रहा है, एक ऑड डे मतलब एक दिन पहले जाना है हमको, तो पहले हमारे पास सैटरडे था तो एक दिन पहले क्या होगा फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा आंसर। अगर आप लॉजिकली नहीं जाना चाहो, वैसे लॉजिकली सोचना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। भाई एक ऑड डे आ रहा है तो एक ऑड डे पहले, क्योंकि पिछले साल की बात कर रहे हैं हम, तो सैटरडे से पहला है ऑड डे क्या होगा फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, 6 मार्च 2005 मंडे है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8, सिक्स्थ मार्च 2005 मंडे। हमको बताना 6 मार्च 2004 को कौन सा डे था। अब वही है, 2004 भले ही लीप ईयर हो पर फरवरी के अंदर होता है, डिफरेंस तो आएगा, जो डेज में आएगा वो फैब में आएगा, फैब तो इंक्लूडेड ही नहीं है लीप ईयर वाली, तो लीप ईयर की फैब तो पहले निकल गई। 2004 से चल के 2005 तो जाएंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड दिस मार्च। तो फरवरी लीप ईयर वाली तो एक्सक्लूडेड है अभी भी, तो उसको कंसिडर नहीं करना। तो नंबर ऑफ डेज इन बिटवीन, जो भी रेंज है उसके बीच में 365 होंगे। 365 डेज डिवाइडेड बाय कर दो कितना 2, और डिवाइडेड बाय 7, नंबर ऑफ ऑड डेज ऑड डे इज इक्वल टू 1, क्योंकि 365 डेज में ऑड डे कितने होते हैं 1 ऑड डे होता है। आप वैसे भी कर सकते हो, 365 डिवाइडेड बाय 7 करो तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 ऑड डे। अब हमको पहले जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो मंडे से पहले क्या होगा संडे, तो वैसे भी हमारा आंसर संडे आ रहा है, और वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो कि मंडे की कोडिंग कितनी है 1 कोड है ये, ऑड डे नहीं, मतलब इसका कोड है ये। तो 1 माइनस 1, क्योंकि एक साल हम पीछे जा रहे हैं, इज इक्वल टू ऑड डे और इज इक्वल टू डे ऑन 6 मार्च 2004। 1 - 1 is 0, 0 implies Sunday, Sunday will be there on 6 मार्च 2004। ऐसे नहीं तो मंडे से अ डे बिफोर मंडे, और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं अ डे बिफोर मंडे विल बी संडे। तो ये यहाँ से भी हम आंसर बता सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज आस्क्ड इन रीजनिंग क्वेश्चंस later on. This is why applied maths is created, so that the students who are like to whom maths is not that much important, that integration, differentiation is not that much important, they just want to study maths in order to fight, in order to use it later on during their competitive exams. So that is why this applied maths is created. So these topics are included in it. So very important topic it is. So I hope it is clear to you.
Just pause the video and note down. Thank you for watching it. If you understand the concept, just press the like button also. Thank you.